Good morning, children. I hope you all kids are fine and safe at your homes. This is your Sandhya ma'am back with your English class. Children, as you all are knowing that you all know that we are doing the lesson number 2 from our English literature book, Farida Plans a Feast. Okay? We were doing the book exercises. Some of the book exercises have been completed and very few are left out. So today in this class we are going to do the book activity which is given in page number 30 of your book. Okay? But children, before going to that book activity, this is the book activity which is given in page number 30. But before moving to that book activity, you children should know what are conjunctions. Okay? This exercise is based on conjunctions, but until and unless you know what are conjunctions, you won't be able to do this activity. So let us move to what are conjunctions. Conjunctions are joining words. What are conjunctions? Conjunctions are joining words. Conjunctions are joining words. They are joining words. They join what? They join two words, a group of words, or a sentence. Group of words, group of words, or sentences. Okay? कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने के काम में आते हैं, है ना? व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. व्हाट डू दे जॉइन? दे जॉइन either two words, two sentences or a group of words. ओके? कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये दो वाक्यों को या दो शब्दों को या शब्दों के समूहों को जोड़ने के काम आते हैं. जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने में लाए जाते हैं या दो शब्दों को जोड़ने में लाए जाते हैं या एक शब्दों के समूह को जो जोड़ने के काम आते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं कंजंक्शंस. The words which join two words or group of words or sentences are called conjunctions. And basically, what are the words which help us in joining two sentences or two words? There are many words, but today in this class we are going to learn about four joining words, that is and, or, because, and but. Okay? What are the words? What are the joining words we are going to learn in this class? That is and, or, because and but. और भी वर्ड्स हैं जो दो शब्दों को या शब्दों के समूह को या वाक्यों को जोड़ने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. पर आप बच्चों के लिए अभी सिर्फ चार वर्ड्स को ही सीखना है, चार वर्ड्स को ही आपको समझना है. वो कौन से हैं? एंड, or, because, or but. Okay, you have to only learn the four conjunction words. What are they? And, or, because, and but. Okay, so I hope you all children have understood what are conjunction words. Conjunctions are those words which help us to join two words or two sentences or a group of words. क्या होते हैं कंजंक्शंस? कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर शब्दों के कुछ समूहों को जोड़ने के काम में लाते हैं. ठीक है? उन शब्दों को जैसे कि एंड है, और है, बिकॉज है, बट है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं कंजंक्शंस. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस अब हम हमारी एक्टिविटी पे आते हैं. एक्टिविटीज में आपको फोर सेंटेंसेस दिए हैं और वही फोर कंजंक्शन वर्ड्स आपको दिए हैं. कौन से? एंड, बिकॉज, बट और फॉर. ये चार जॉइनिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं. आप बच्चों को क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ के उस जॉइनिंग वर्ड्स के सहारे से इनको ज्वाइन करवाना है. ठीक है? पहला सेंटेंस क्या है? आई एम मियाओ. आई लिव अलोन. डैश फरीदा टेक्स केयर ऑफ मी. मैं कौन हूँ? मैं मियाओ हूँ.
मैं रहता अकेले हूँ डैश फरीदा टेक्स केयर ऑफ मी फरीदा मेरा ख्याल रखती है मेरा देखभाल करती है। तो किस वर्ड से हम इनको जोड़ेंगे किस वर्ड से हम इसको जोड़ेंगे यस बट क्या आएगा यहाँ पे बट क्या है इसका मतलब मैं मियाऊं हूँ मैं रहता अकेला हूँ पर व्हाट इज बट पर फरीदा मेरा ध्यान रखती है। ओके आपने दो शब्दों को दो सेंटेंस को जोड़ दिया। क्या था पहला सेंटेंस आई एम मियाऊं और आई लिव अलोन मैं अकेला रहता हूँ पर फरीदा मेरा देखभाल करती है। ठीक है तो हमने ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया किसके सहारे से कंजंक्शंस के सहारे। कौन सा कंजंक्शन वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे बट। ओके we join these two sentences with the help of conjunctions. Okay which conjunction word did you use to join these two sentences yes but. Okay now come to the second sentence I am cow I fly to Farida every day मैं cow हूँ और मैं हर दिन फरीदा के पास उड़ के जाती हूँ dash she gives me tomatoes वो मुझे टमेटोज देती है। क्यों आई एम काउ मैं क्या हूँ मैं काउ हूँ और मैं हर रोज उड़ के फरीदा के पास जाता हूँ। शी गिव्स मी टमेटोज वो मुझे टमेटोज देती है। अब इन दोनों सेंटेंस को हम किससे ज्वाइन करेंगे हाउ विद व्हिच वर्ड आउट ऑफ दिस फोर वर्ड्स विद व्हिच वर्ड विल यू ज्वाइन दीस सेंटेंसेस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को हम किसके सहारे हम ज्वाइन करेंगे बिकॉज बिकॉज। ठीक है आई एम काउ मैं काउ हूँ और मैं फरीदा के पास हर रोज उड़ के जाता हूँ क्योंकि बिकॉज क्योंकि शी गिव्स मी टमेटोज वो मुझे टमेटोज देती है। ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस को। Have you all seen children? You have joined these two sentences with the help of conjunction word. Which conjunction word did you use over here? Because. I am cow. I fly every day to Farida's house because she gives me tomatoes. Why does the yeah, I am cow. I fly to Farida every day because she gives me tomatoes. Why does she fly every day to Farida? Because क्योंकि she gives me tomatoes. वो मुझे tomatoes देती है. ठीक है? Now come to the third sentence. We are the chiefs. What do you think we eat? Rice dash fruits. हम कौन है वी आर द चीफ्स। ओके व्हाट डू यू थिंक वी ईट आपको क्या लगता है हम क्या खाते हैं राइस डैश फ्रूट्स राइस या फ्रूट्स है ना ये आपसे पूछ रहे हैं वी आर द चीफ्स। अब व्हाट डू यू थिंक वी ईट राइस हम क्या खाते हैं हम राइस खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं। चॉइस आ गया यहाँ पे राइस या फ्रूट्स में तो आप क्या लिखोगे और what which conjunction word will you use over here or because here choice is been given rice है या fruits है choice है उसके ऊपर है ना what are we are the chief what do you think हम क्या खाते हैं हम rice खाते हैं या हम fruits खाते हैं। तो we have joined those two sentences with the help of or। Fourth sentence I am wolf Farida gives me biscuits dash water। हम कौन है woof woof means dogs हम dogs हैं और फरीदा gives me biscuits फरीदा हमें क्या देती है biscuits dash water। अब किस joining word से आप करोगे इसको and। now what does your sentence become I am wolf मैं dog हूँ फरीदा gives me biscuits and water फरीदा मुझे बिस्किट्स भी देती है और क्या देती है पानी भी देती है। तो आपने यहाँ पे इस सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया यहाँ टू वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया बिस्किट्स और वाटर को किससे ज्वाइन कर दिया एंड से। माने फरीदा मैं डॉग हूँ और फरीदा मुझे
बिस्किट्स और पानी दोनों देती है। तो बिस्किट्स एंड वाटर के बीच में आपने बिस्किट्स और वाटर को किसके साथ ज्वाइन किया? एंड के थ्रू, ठीक है। यू हैव जॉइंड बिस्किट्स एंड वाटर विद द कंजंक्शन वर्ड एंड, okay. Now once again see, I am meow. Meow means who? I am cat. I live alone. मैं अकेले रहता हूँ. फरीदा takes care of me. फरीदा मेरा ध्यान रखती है. I am cat. मैं अकेला रहता हूँ. but फरीदा takes care of me. ठीक है? I am cow. ये कौन है? Crow. I am cow. I fly to फरीदा every day. मैं crow हूँ. मैं हर रोज कहाँ जाता हूँ? फरीदा के पास उड़ के जाता हूँ. Why does she go? Because क्योंकि she gives me tomatoes. वो मुझे क्या देती है? Tomatoes. We are the chicks. ये कौन है? चिड़िया. Birds. What do you think we eat? Rice or fruits? ये क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, या कि ये फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं. इसीलिए चॉइस है राइस और फ्रूट्स में, इसलिए आपने बीच में और लगा दिया. I am Poof. Poof means dog. I am a dog हूँ. फरीदा gives me biscuits dash water. मैं dog हूँ. फरीदा मुझे क्या देती है? Biscuits and water. So you join this two words with the help of and. So you got it? What is the use of conjunctions? What are conjunctions? Conjunctions are joining words which join either two words और a group of words or two sentences. ठीक है? Conjunctions क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं या वो words होते हैं जिनको हम दो शब्दों को जोड़ने के काम लाते हैं या दो वाक्यों के जोड़ने के काम में लाते हैं. जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस. ओके. इनका काम, कंजंक्शंस का काम बस जोड़ने का होता है. The only purpose is to add, to join what? Two words, two sentences or a group of words. Okay. So I hope with this that you all have understood this topic, conjunctions, what are conjunctions, and even you are able to understand the book activity. So children, till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe at your home.